Today is a very special day because I am interviewing a very special person. Now let me tell you, why is this interview very special to me? Because I belong to Devas and the artist whom I am going to be interviewing today is also from my own city Devas. Before we get into the interview, let me tell you something about this very special artist. She works in collage art form. A collage is a very rare art form. Not many people work into it. Before getting into the collage art form, let me tell you something about Devas as a city. Devas has its historical importance and it is in Madhya Pradesh. Devas is known for its history and for royal families that belong to Devas. But that is not all. Devas has given to India many authors, many poets, many spiritual masters, many painters. So that makes Devas a very special city for India and for world. Devas has given to India and world many authors, many painters, many singers, many spiritual masters. These famous artists require no introduction at all. But let me mention about them to you. Devas has given to world many famous classical singers. Some of them are Sangeet Samrat like Rajab Ali Khan Sahab. And do you know, Lata Mangeshkar's guru, Amanat Ali Khan Sahab also belonged to Devas. And that's not all. Who doesn't know about Kumar Gandharv, the famous musician? Well, if they would have been alive today, let me tell you, I'm not joking, but they deserve Bharat Ratna. And they should be awarded with Bharat Ratna. Such is their stature in the field of classical music. And let me tell you one very interesting fact that very few people know. You know what Lata Mangeshkar stated once? I've heard that she said that if Kumar Gandharv just call her once, then she can perform a music program in Devas free of cost. So you can imagine the level of Kumar Gandharv and likes of these musicians. When we talk about painting, Devas has given to the world painters like Vishnu Chinchalkar, Afzal Pathan and Prabhu Joshi. Devas is not behind in the field of authors. We have authors like poet, Professor Naeem Khan. When we talk about spiritual masters, then also Devas is no far behind. The famous Shilnath Maharaj, who is master of Nath Sampradaya, is from Devas. Whole world knows about them. And when we talk about Devas, we have to talk about our own Sufi mystic, Mr. Afzal Khan Warsi, Baba Sahab. Baba Sahab, I'm sorry that I'm taking your name in this interview. But if we don't take your name in this interview and when the name of Devas comes, then it would be injustice for all of us and for all these artists, as you are one very significant part of Devas. We are blessed today because of Baba Sahab, who is silently working for humanity and love, who is doing social service all over the world, and he stays away from spotlight. So I'm sorry I'm taking your name, but I have to take your name when the name of Devas comes. So that is the historic importance and artistic importance of Devas as a city. Now let me introduce to you a very special artist, a master artist, I must say, from Devas, who specializes in collage art form. Now what is collage art form? We will know from her. She has been a lecturer with Ahilya Ashram and now she is retired. So let me introduce to you this very special lady, none other than Sandhya Salunke ma'am. These are mother and father of Sandhya ma'am. Sandhya ma'am, welcome to the talk, wherein
when I talk with artists. So, ma'am, would you tell us little a bit about your professional journey, your background, and आप कैसे आपका इंटरेस्ट जागृत हुआ कोलाज आर्ट फॉर्म में? कोलाज आर्ट फॉर्म में मेरा इंटरेस्ट जागरूक हुआ जब मैंने बीएड किया था। तब हमारा एक क्राफ्ट का पीरियड लगता था, उसमें हमको कोलाज विधा के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वहाँ तब मेरा इंटरेस्ट जागरूक हुआ और फिर मैंने उसको धीरे धीरे डेवलप किया और आज मैं एक कोलाज आर्टिस्ट हूँ। और कोलाज में मैं कई प्रकार के पेंटिंग्स बनाती हूँ, जैसे फिगरेटिव, लैंडस्केप एंड एब्स्ट्रैक्ट, तीनों प्रकार के पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो मैम आप बताएंगे कि कोलाज आर्ट फॉर्म होता क्या है? ये नॉर्मल पेंटिंग से किस प्रकार से डिफरेंट है? कोलाज जो वर्क है उसमें कलर का कतई प्रयोग नहीं होता है। उसमें आप कोई भी कोलाज आर्ट ऐसी विधा है जिसमें ब्लू थिंग्स का उपयोग करके, यानी जो अनुपयोगी चीजें हैं उनका उपयोग करके उसको चित्र का रूप दिया जाता है। और उसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लॉथ यूज कर सकते हैं, बिट्स ऑफ पेपर्स, कलर्ड मैगजीन के पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट के पिक्चर्स, ऐसे कुछ भी यूज करके आप कोलाज वर्क कर सकते हैं। और कोलाज जो है वो बहुत पुरानी विधा है। सन 1912 में हमारे जो महान कलाकार हैं पाब्लो पिकासो, उन्होंने कोलाज वर्क किया था, शुरू किया था और उन्होंने ऑयल क्लॉथ का उपयोग अपने पेंटिंग में किया था। और उसके बाद जॉर्ज ब्रोकियो ने पेपर कोलाज का उपयोग किया। उन्होंने एक फ्रूट डिश बनाई थी, उसमें उन्होंने पेपर कोलाज का उपयोग किया। तो मैम आप जिस तरह से बता रहे हैं ये तो काफी रेयर आर्ट फॉर्म है, मतलब मैंने तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना, तो मुझे लगता है ये काफी टफ होगा। पेंटिंग से भी क्या ये टफ है? इसमें ऐसा अपन कह नहीं सकते कि टफ है। टफ तो मतलब सभी जिसमें मन लग जाए वो सब अच्छा ही लगता है। तो पेपर कोलाज में कलर्ड मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट या कोई भी ऐसे चित्र से कुछ ऐसे शेप्स या फॉर्म्स मिल जाते हैं जिनसे चित्र का थीम अपने आप सामने आ जाता है और बनाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इमेजिनेशन के आधार पर लैंडस्केप बना सकते हैं। इसमें क्या वाटर कलर या ऑयल कलर का उपयोग करते हैं कि कलर बिल्कुल ही यूज नहीं होते? नहीं, कोलाज में कलर्स का उपयोग नहीं होता है, परंतु मैं जो है आजकल मैंने एक नया काम शुरू किया है कि एक्रेलिक पेंटिंग को कोलाज के साथ मिक्स करके मिक्स मीडिया में कुछ पेंटिंग्स बनाए। अच्छा मैम, तो मैम आप बताएंगे कि आपने किस आर्ट फॉर्म के कहीं एग्जीबिशंस लगाए हैं? जी हाँ, मैंने दिल्ली में, बॉम्बे, जयपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर इस जगह पे लगाए हैं। और अभी अभी रिसेंटली मैंने जयपुर में स्पंदन आर्ट फेस्टिवल हुआ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो आप ही हैं जो इंदौर में कोलाज पे काम कर रही हैं कि आपके जैसे बहुत आर्टिस्ट हैं? नहीं, कोलाज आर्टिस्ट हैं जिसमें मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगी श्री राम जो, वो बहुत अच्छे कोलाज आर्टिस्ट हैं। और भी कई स्टूडेंट्स, आजकल तो स्कूल में ये सब्जेक्ट चल रहा है कोलाज का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कोलाज आर्टिस्ट बनते हैं। तो आप भी क्या किसी को ट्यूशन देते हैं और बच्चों को कोलाज सिखाते हैं? नहीं, मैंने तो अभी तक तो नहीं सिखाया मैंने किसी को, पर मैं चाहती हूँ कि ये कला जो है मैं किसी को सिखाऊं और बच्चों के बीच में इसका प्रचार करूं। आपको ये आइडियाज कहाँ से आते हैं कोलाज के? जैसे आपके पास सामने पेपर हो या मैगजीन हो या क्लॉथ हो, तो आपको एकदम से इंस्पिरेशन कैसे मिलता है? कुछ ऐसा एक पीस ऑफ पेपर मिल जाता है जिससे इच्छा हो जाती है कि इसको अपन एक चित्र में डेवलप कर सकते हैं। और कोलाज में एक और खास बात ये होती है कि पेपर को ऐसे इस तरीके से हाथ से फाड़ा जाता है कि उसकी वाइट एज जो है वो दिखना चाहिए। कभी कभी कैंची का भी उपयोग करते हैं, पर मेन चीज उसमें पेपर का वाइट एज जो है
दिखना चाहिए। मैम आप हमें थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, आपके माता पिता के बारे में। हाँ जी, मेरे फादर मिस्टर जय सिंह राव साळुंखे और मेरी माता हैं मिसेस विजयाबाई साळुंखे। और मेरे दोनों माता पिता जो हैं वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। मेरे फादर ऑलराउंडर थे और स्टेट टाइम में वो हर गेम में वो कप पार्टिसिपेट भी करते थे और जीतते भी थे। तो देवास के जो महाराजा थे छत्रपति, उन्होंने फादर को बैन किया कि आप जो है, एक बड़ा सा कप दिया उन्होंने और फिर बैन किया कि अब आप किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे लोगों का चांस खत्म हो जाता है, चला जाता है। इसलिए उन्होंने उनको एक्सीलेंट होने के लिए उन्होंने ये प्राइज पे की कि ही वाज लाइक सो गुड एंड ही वाज अनबीटेबल दैट नोबडी कुड बीट हिम। तो इसलिए उन्हें कप मिला और उन्हें बैन कर दिया गया ताकि दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिले और दूसरे लोग खेलों में आगे आ सके। वाह। और आपकी माता जी? मेरी मदर भी बहुत अच्छी बैडमिंटन की प्लेयर रही हैं और स्टेट टाइम में वो चैंपियन रही देवास की बैडमिंटन की। अच्छा। और फादर की डेथ तो बहुत जल्दी हो गई थी और मदर ने, हम 4 भाई बहन हैं और एक ब्रदर है मेरे, 4 बहनें और एक ब्रदर हैं। तो उनको हमारी मदर ने बड़ा किया, एजुकेशन में प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दिया, जॉब करने में प्रोत्साहन दिया। तो आज हम जो हैं वो हमारी मदर के कारण सब भाई बहन जो है बड़े हुए। और मेरे ब्रदर जो है एज ए DSP रिटायर्ड हुए हैं इंदौर में। उन्होंने काफ़ी सालों तक अपनी सेवाएं पुलिस विभाग को दी हैं। तो ये तो काफ़ी काबिले तारीफ है कि आपकी माता कितनी स्ट्रांग रही होंगी कि उन्होंने आप सबको रेज किया और आज वो इस पोजीशन पे है। जी। आप ओरिजिनली देवास के ही हैं? जी हाँ, हम लोग देवास के हैं। अच्छा। बचपन से ही आर्ट में की तरफ आपका रुझान था? जी हाँ, बचपन से मुझे शौक था। मैं ग्रीटिंग्स बनाती थी, फिर धीरे धीरे वो शौक बढ़ता चला गया। और मैं कब आपने शुरू किया कोलाजी? कितने साल हो गए आपने? लगभग 15 साल हो गए। 15 साल? जी। तो आपने पहले जब शुरू किया, जब आप पहली पेंटिंग बना रहे थे, तब आपके मन में क्या फीलिंग आई और आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व कैसे हो गई इसमें? शुरू में तो इतना अच्छा नहीं बन पाता था, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, पर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा समझ बढ़ती गई और पेंटिंग्स थोड़े अच्छे सेटिस्फैक्टरी बनते चले गए। मैम, हमें बहुत खुशी है कि आपने अपना टाइम निकाल के हमको इंटरव्यू दिया, तो थैंक यू सो मच मैम। और मैम, हम प्रे करते हैं और आशा करते हैं कि आप ये कोलाज वर्क इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाएं। मुझे ये भी जानना था कि विदेशों में भी क्या आपने कोलाज वर्क को? नहीं, एक बार मैं कनाडा गई थी 2014 में। तब मैंने वहाँ पे हमारे एक स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन दिया है बच्चों को कोलाज वर्क का। आपने कनाडा अपना वर्क लेके गए थे कि उधर ही आपने बनाया फ्रेश? नहीं, बनाया नहीं। एक्चुअली मेरे पास मेरे मोबाइल में पिक्चर्स थे, वो उन लोगों ने डेवलप करके पूरा एग्जिबिट किए और फिर स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम आशा करते हैं कि आप बड़े सुंदर सुंदर कोलाज बनाएं और इंडिया का नाम रोशन करते रहें वर्ल्ड मैप पे। तो हियर वी हैड विद अस संध्या सालुंखे मैम, who is working in the field of collage art form from 15 years. That's a long time. Now, in a while, we will check out her paintings and we will get to know more about collage from her. So, this is Shruti signing off. I'll see you soon. Bye. संध्या सालुंखे मैम से उनकी पेंटिंग्स के बारे में और एक झलक देखते हैं उनकी पेंटिंग्स की। तो मैम, आप इन गणपति जी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, ये गणपति जो है वो प्योर कोलाज है। इसमें कोई मिक्स मीडिया नहीं है और इसमें लीव्स के शेप में मैंने फॉर्म्स क्रिएट करके और फिर इनको बनाया है। क्या यूज किया है आपने इसमें? पेपर कोलाज। पेपर? तो इसको कलर करने के लिए? नहीं, एज इट इज ये पेपर ऐसा के ऐसा ही था। ओह, तो ये ऐसा ही पेपर था और उसमें आपने गणपति जी का शेप दे दिया? जी हाँ। ओके। पर इसकी काबिले तारीफ बात है कि ये एक पेंटेड आर्ट फॉर्म दिखता है। जी, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है कि जैसे तस्वीरें आपसे बोल रही हैं, इतनी
कितनी जान है इन तस्वीरों में। मैम आपने कितनी जान भरी है और आपका एफर्ट दिख रहा है इन कोलाज वर्क में। आप इनके बारे में बताइए कि ये कैसे बने। ये एक्चुअली विलेज गर्ल्स की पेंटिंग्स हैं, जो कि विलेज में साइकिल के पहिए को लेकर, टायर लेकर और बच्चियां खेलती हैं, उससे रिलेटेड ये पेंटिंग है। अच्छा। और ये डांसिंग गर्ल्स हैं। अच्छा। विलेज में जो है खूब मस्त होके छोटी छोटी बच्चियां डांस करती है, उसके बारे में है। क्या आपने यूज किया है इन्हें बनाने के लिए? पेपर कोला, पेपर, सब मैगजीन के पेपर्स और मैगजीन के पेपर्स। अरे वाह, क्या बात है, ब्रिलियंट, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम नेक्स्ट पेंटिंग पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कोलाज इन्होंने बुद्धा का बनाया है। इसका इंस्पिरेशन आपको कैसे आया और इसकी प्रोसेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इसकी प्रोसेस ये रही कि इसमें ये मिक्स मीडिया में है। इसमें जो बुद्धा का फेस है वो पेंटेड है, हैंड पेंटेड, एंड उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कोलाज है। तो इन पेंटिंग्स के द्वारा आप तो एक मैसेज भी दे रही हैं कि रिसाइकल, रीयूज और पॉल्यूशन ना फैलाएं। जी। और कैसे इंस्पिरेशन आया इसके लिए? इसका मेरे को बुद्धा का पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था कि मैं बुद्धा का चित्र बनाऊं। तो मैंने पहले तो चित्र बनाया और फिर उसके आसपास मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो कुछ ऐसा मैं प्रकाश पीछे से आए ऐसा, उसके लिए फिर मैंने पेपर का यूज किया। बहुत सुंदर है मैम। और कितने दिन लगे आपको ये बनाने में? इसको बनाने में 8 से 10 दिन लगे। और आप हर दिन कितने घंटा इस पे काम करती थी? 2 घंटे। 2 घंटे 10 दिन, मतलब 20 घंटे 24 घंटे का काम है। अच्छा, बहुत सुंदर। ये पेंटिंग्स मैम ये क्या दर्शा रही हैं? ये फ्रेंड्स फॉर एवर। ओह, अरे वाह। और इसमें ये मिक्स मीडिया है या सिंपल कोलाज? ये कोलाज, सिंपल कोलाज। तो मैम अभी तक आपने जितने कोलाज बताया उसमें पेपर का यूज हो रहा है क्या? ऐसा कोई कोलाज है जिसमें कि क्लॉथ और दूसरी चीजों का यूज नहीं है? अभी मैंने सिर्फ पेपर कोलाज पे वर्क किया है। और मैम इन लैंडस्केप्स के बारे में कुछ बताइएगा ना। लैंडस्केप भी एक मेरा बहुत अच्छा मतलब मेरे को पैशन है। हाँ। लैंडस्केप बनाने का मुझे बहुत इच्छा रहती है हमेशा। हाँ। तो प्रकृति के रूप को किस तरह अच्छे से अच्छे तरीके से दर्शाया जाए, ये मेरा भाव रहता है। अच्छा, तो मैम आपको कोई फीलिंग आती है ऐसे कि इस फीलिंग से मुझे बनाना है, कि आपको एकदम से इंस्पिरेशन कब मिला लैंडस्केप बनाने का, कि आप हमेशा से कनेक्टेड थे नेचर से? नहीं, हमेशा से कनेक्टेड थे। अच्छा। और ये लीव्स के ऊपर बनाया मैंने। लीव्स जो रहती है, लीव्स ब्रेथ आउट लाइफ। अच्छा, तो इसलिए बनाया। हवा इसमें तो साइंस और आर्ट दोनों कंबाइंड है। तुमने कितना खूबसूरत मैसेज दिया है कि लीव्स ब्रीथ आउट लाइफ। इनफैक्ट ये पेंटिंग और ये भी बोल रही है कि हमें ज्यादा पेड़ प्लांट करने चाहिए आजकल, कितना पॉल्यूशन है। और ये वाला देखिए आप। हाँ जी। ये वाला जो पेंटिंग है, ये एमपी में झाबुआ नामक एक स्थान है जहाँ पे ट्राइबल पीपुल रहते हैं। तो वो उनका एक वो झुंड फेस्टिवल होता है भगोरिया, जिसमें कि वो अपने पाउस को सिलेक्ट करते हैं ये डांसिंग प्रोसेस में। अच्छा, वो है भगोरिया फेस्टिवल डांस है, भगोरिया डांस है झाबुआ। तो आपने कभी विजिट किया है झाबुआ? देखा है कि आपने टीवी में देखा और आपको लगा? टीवी में देख के किया। अरे वाह, ये आपके प्योर इमेजिनेशन? जी हाँ जी। अरे वाह, देखिए ये आर्ट फॉर्म प्योर इमेजिनेशन से बना, भगोरिया फेस्टिवल ऑफ झाबुआ। जी हाँ जी हाँ। सूफीज्म का है और ये दरवेश डांस है। ओके। और इसकी प्रेरणा मुझे आदरणीय बाबा साहब से मिली। अरे बाबा साहब तो हम सभी को ब्लेस करते हैं। जी जी। और बाबा साहब ने मुझे बोला कि सूफीज्म पे आप दरवेश डांस का पेंटिंग बनाइए, तो फिर मैंने ये बनाया। बहुत बाबा साहब के आशीर्वाद से मेरा ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत बन पाया। बेशक आंटी, जिसपे बाबा साहब की ब्लेसिंग होती है जी, उसे तो वो सफलता ही सफलता होती है। वाटरफॉल रनिंग थ्रू रॉक्स है। ओके। रॉक्स के बीच में से वाटरफॉल कैसे रन करता है। आंटी इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बताएंगे? आई कैन सी कि ये तो काफी टफ रहा होगा, ये तो काफी बड़ा पेंटिंग है। जी जी।
इसमें कुछ इसमें डार्क कलर्स ना लेते हुए मैंने लाइट लाइट कलर्स लेके और ये बनाया है। अच्छा, और कितने दिन लगे आपको ये बनाने में? इसको बनाने में लगभग 15 डेज। 15 डेज जी। पर आपको ऐसे मिल जाते हैं ये कटिंग्स की? नहीं, ये मैगजीन्स में से ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ते हैं, पुराने मैगजीन्स में से। आपके पास इतना मैगजीन आपने हाँ, कलेक्ट किया कलेक्शन। होगा। जी हाँ। और इस पेंटिंग के बारे में? ये इंडियन फार्म्स है, ब्यूटी ऑफ इंडियन फार्म्स। तो उसमें जो खेतों में कलरफुल जो कलर्स होते हैं उसका उपयोग किया है। अच्छा, बहुत खूब आंटी, ये तो अपना इंडिया का एग्रीकल्चर दर्शा जी रहा है। हाँ जी। इसमें तो भारत की आवाज आ रही है इस पेंटिंग से। आपके कोलाज वर्क कैसा है मैम के, जैसे अभी बस बोल पड़ेगा जी। इतना लाइवली और उसमें इतनी जान है। अरे ये देखिए कितनी सुंदर कोलाज आर्ट वर्क है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ताज़ी कोपले निकली हैं। उनके बारे में कुछ बताइए मैम। एक्चुअली ये कोलाज प्लस मतलब मिक्स मीडिया है। इसमें मैंने ये जो लीव्स फॉर्म में शेप्स काट के और लगाए हैं और उसके साथ साथ ब्लैक इंक का प्रयोग किया है। वो कितनी सुंदर है। और आप क्या इसमें शेड्स का भी ध्यान रखती है जब आप हाँ जी बनाते हैं? जी हाँ। कि कौन सा शेड किससे मैच करता है? तो ये आपको वर्क करते करते आपको इसका सेंस हो गया कि आपने सीखा है? नहीं, इसको मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इसे लीव्स से अपन कुछ बना सकते हैं। अच्छा, पहले मैंने एक पेंटिंग लीव्स को ड्राई किया बुक्स में रख के हाँ। और बना के देखा था, और वो इतना नहीं अच्छे से बन पाया, फिर मैंने पेपर का यूज करके बनाया। Look at it, this is so beautiful, as if somebody has got real leaves from trees and stuck them on paper. They are as lively as that. इसके अलावा संध्या मैम कितनी खूबसूरती से फैब्रिक पेंटिंग भी करती हैं। उनके हाथों की सफाई देखिए और परफेक्शन देखिए। लुक एट द डिटेल्स, इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। मैम आप इस फैब्रिक पेंटिंग के बारे में कुछ बताएं। इसमें साड़ियों पर पेंटिंग करके और पहनने में मजा आता है, इसलिए फैब्रिक में। तो ये कब से आपने शुरू किया? ये भी मैं साथ साथ कोलाज के साथ साथ ये भी करती रही हूँ। अच्छा, तो क्या कलर यूज किया गया है इसमें? इसमें फेविक्रिल कलर्स यूज किया है। बहुत सुंदर है। एक चीज नोटिस की मैम कि आपको प्रकृति से बहुत प्यार है, नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। तो आपके हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं नेचर उभर के आता है। तो इनके बारे में बताइए, क्या साड़ियाँ हैं और कौन से कलर यूज करे हैं? इसमें भी फेविक्रिल कलर यूज किया। ये चंदेरी साड़ी है एमपी की। हाँ। प्रसिद्ध साड़ी चंदेरी, उस पे फेविक्रिल पेंटिंग किया है। अच्छा। और ये जो डिजाइन है ये फ्लोरल डिजाइन और ये पीकॉक, ये मैंने खुद अपने हाथों से ड्रॉ करके और डिजाइन सेट करके और बनाया। और ये इसमें ये वार्ली प्रिंट है। वार्ली तो काफी फेमस है। जी हाँ जी। और ये फिर से रोजेस। जी हाँ। साड़ी कौन सी है? ये पॉलिएस्टर साड़ी। अच्छा, इसके बारे में? ये शिफॉन पे किया है। अच्छा, तो आपको क्या लगा सबसे ज्यादा इजी कौन सा फैब्रिक होता है पेंट करने में? सिल्क। सिल्क। जी। अच्छा। सिल्क पे बहुत अच्छे से होता है। ओके, और इन सब में दिक्कतें आती है आपको, क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, शिफॉन पे करने में काफी चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा वो रिंग जो फिक्स करते हैं वो बहुत सावधानी से करना पड़ती है। जरा से में वो कपड़ा खराब होने का डर रहता है। तो मैम क्या आप ये सेल भी करते हैं? हाँ, मेरा ये प्लानिंग है कि ऑनलाइन में अपना वेबसाइट बना के और पेंटिंग का प्रदर्शन शुरू करूँ। मैम हम आप आशा करते हैं कि आपका ऑनलाइन जो भी वेंचर आप शुरू कर रहे हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हो और आपका ये कोलाज वर्क मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। जी, थैंक यू।